Hello students, welcome to class. Today we are going to summarize the full chapter Geography and Some Explorers by Joseph Conrad. In this chapter, firstly we read about the author. Joseph Conrad was born in 1857 and died in 1924. He was a Polish-British novelist. Geography and Some Explorers उन्होंने 1923 में लिखी थी और पब्लिश ये हुई थी 1924 में. He was a sailor before becoming a writer. Professions थे इनके novelist, essayist and Joseph Conrad's first language was Polish, not English. Joseph Conrad की जो पहली लैंग्वेज थी वो पोलिश थी, इंग्लिश नहीं. इंटरेस्टिंगली ही स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश इन हिज 20s. उन्होंने अपनी 20s में इंग्लिश में लिखना शुरू किया और बाद में वे एक ग्रेटेस्ट इंग्लिश नॉवलिस्ट बने. वाई ही इज़ फेमस? जोसेफ कॉनरेड इज़ फेमस फॉर हिज राइटिंग्स. वो अपनी राइटिंग्स के लिए फेमस है. His works are based on his own experiences as a sailor, which makes his writings realistic and powerful. उनके जो वर्क्स थे वो उनके खुद के एक्सपीरियंस पर बेस्ड थे, जिसकी वजह से उनकी राइटिंग्स और भी ज़्यादा रियलिस्टिक एंड पावरफुल हो जाती थी. Joseph Conrad says that a journey is not about only discovering new places, it is also about discovering ourselves. For him, उनके लिए geography was not just a subject. Maps represented dreams and possibilities. True exploration should increase knowledge, not power. A real explorer is driven by curiosity, courage, and responsibility, not by greed. Writing style of Joseph Conrad. Joseph Conrad's writing style is reflective, philosophical, autobiographical, descriptive, symbolic, and rich in moral and psychological insights. Now we are going to read about the chapter. It's a short summary. A reflective and autobiographical essay by Joseph Conrad. जो जियोग्राफी एंड सम एक्सप्लोरर्स है, ये एक रिफ्लेक्टिव और ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है जोसेफ कॉनरेड के द्वारा लिखा हुआ, विच एक्सप्लेन्स चाइल्डहुड फैसिनेशंस एंड एक्सप्लोरेशन, वन ऑफ ह्यूमैनिटीज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स. As a child, he was attracted to blank spaces on maps. They represent mystery, adventure, and endless possibilities. Geography not just a school subject but a source of imagination and inspiration also. The essay also pays tribute to the great explorers who traveled into unknown lands with courage and determination. Conrad explains that the real purpose of exploration should be to gain knowledge and understand the world. कॉनरेड का कहना था कि जो रियल पर्पज़ है एक्सप्लोरेशन का वो नॉलेज गेन करने का होना चाहिए, ना कि सीक पावर और टू कंट्रोल ओवर द पीपल. दिस ऐसे टीचेस अस दैट ज्योग्राफी इज़ मच मोर दैन मैप्स. ये ऐसे हमें सिखाता है कि जियोग्राफी केवल मैप्स तक सीमित नहीं है. एंड ट्रैवल लिटरेचर कनेक्ट्स पीपल, कल्चर एंड सिविलाइजेशन. और जो ट्रैवल है वो लोगों को, कल्चर को और बहुत सारे सिविलाइजेशंस को एक साथ जोड़ता है. And broadens knowledge and increase curiosity, inspires not only to discover world but also ourselves. ये सिर्फ वर्ल्ड को डिस्कवर करने के लिए इंस्पायर नहीं करता, लेकिन खुद को भी डिस्कवर करने के लिए इंस्पायर करता है. Central message of this essay: Geography is not just about the study of places, it is the study of human curiosity, imagination and the spirit of exploration. कॉनरेड कहते हैं कि जियोग्राफी केवल स्टडी ऑफ प्लेसेस नहीं है, बल्कि ये एक स्टडी है ह्यूमन क्यूरियोसिटी की, इमेजिनेशन की और द स्पिरिट ऑफ द एक्सप्लोरेशन. मीनिंग ऑफ जियोग्राफी. जियोग्राफी इज नॉट जस्ट अ स्कूल सब्जेक्ट अबाउट मैप्स, माउंटेन्स, रिवर, कंट्रीज, बट इट्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन विच टेल्स अस how people traveled, how cultures met, how knowledge increased, and how human beings discovered the unknown world. Geography is not about remembering places. Geography केवल स्थानों को याद करने की चीज़ नहीं है. इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड द वर्ल्ड. जियोग्राफी इज मोर देन मैप्स. कैन अ मैप टेल द होल स्टोरी ऑफ अ प्लेस? द आंसर इज नो, बिकॉज अ मैप ओनली टेल्स अस वेयर अ प्लेस इज, बट इट नेवर टेल्स हाउ पीपल लिव देयर, what culture they follow. ये भी दो बार लिख दिया मैंने. Or what dreams they have. That is why Conrad says maps shows locations, traveling reveals life. जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, हम मैप्स पर केवल कश्मीर को देख सकते कि कश्मीर कहाँ पर है. हम वहाँ के वेदर को जो है महसूस नहीं कर सकते, वहाँ के लोकल पीपल से बात नहीं कर सकते, वहाँ के कल्चर को नहीं समझ सकते.
लेकिन ट्रैवलिंग ऐसी चीज़ है जो हमें इन सब चीज़ों के साथ जोड़ती है। That's why Conrad says maps shows locations and traveling reveals life. The next is spirit of exploration. Conrad says every explorer starts with one thing, curiosity. Curiosity becomes dream, dream becomes journey, journey becomes discovery, and discovery becomes knowledge. According to Conrad, great explorers were not superheroes. They were ordinary people with extraordinary courage. कॉनरेड कहते हैं कि जो ग्रेट एक्सप्लोरर्स थे वो कोई सुपर हीरोज तो थे नहीं, वो भी ऑर्डिनरी पीपल ही थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज के साथ। दे एक्सेप्टेड स्टॉर्म्स, जंगल्स, अननोन लैंड्स बिकॉज दे वांटेड टू नो व्हाट नो वन नोज बिफोर, क्योंकि वे जानना चाहते थे जो पहले किसी ने नहीं जाना था। द नेक्स्ट वन इज ट्रिब्यूट टू ग्रेट एक्सप्लोरर्स. Conrad pays tribute to famous explorers. First is Marco Polo. Marco Polo traveled to Asia. He wrote about Chinese culture, wrote about trade, people and cities. His writings helped Europeans imagine Asia. उनकी राइटिंग्स ने यूरोपियंस को मदद की इमेजिन करने के लिए, किसको इमेजिन करने के लिए? एशिया को इमेजिन करने के लिए। द सेकेंड वन इज इब्न बतूता. He is one of the greatest travelers in history. Traveled across Africa, Asia, Middle East and India. राहिला का मतलब होता है यात्रा. उन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा था जो आज भी लोगों के लिए यानी कि महत्वपूर्ण है और इंफॉर्मेटिव रहता है. His travel account is still an important historical source. Third one is Vasco da Gama. He reached India through the sea route. वो इंडिया सी रूट से आए थे, जिसके बाद ये माना जाता है कि वो पहले इंसान थे जो सी रूट से इंडिया आए थे और उनकी वजह से ही जो ट्रेड है वो सी रूट के थ्रू चालू हुआ था, जिससे बहुत सारा खर्चा भी बचता था, वरना बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता था. सो यूरोप कुड नाउ डायरेक्टली ट्रेड विद इंडिया. फोर्थ इज क्रिस्टोफर कोलंबस. ही रीच्ड अमेरिका इन 1492. हिज वॉयज चेंज्ड वर्ल्ड हिस्ट्री. Although it also led to European colonization and many negative consequences for indigenous people. Fifth is human qualities. Conrad is not praising the explorers. Conrad is not praising the explorers because they traveled. He praises them because of their qualities. Those qualities were courage, patience, endurance, determination, and curiosity. Central idea of this essay. अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो आप इसके लिए ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे जियोग्राफी इंस्पायर्स इमेजिनेशन, एक्सप्लोरेशन एक्सपेंड्स ह्यूमन नॉलेज, मैप्स बिगिन क्यूरियोसिटी बट जर्नी क्रिएट अंडरस्टैंडिंग, ग्रेट एक्सप्लोरर्स शो करेज एंड डिटर्मिनेशन, जियोग्राफी कनेक्ट्स कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन, एक्सप्लोरेशन शुड बी ड्राइवन बाय क्यूरियोसिटी नॉट ग्रीड. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यूरियोसिटी जो एक्सप्लोरेशन है वो क्यूरियोसिटी के द्वारा होना चाहिए, ना कि ग्रीड के लिए. ये लोगों के लिए होना चाहिए, लोगों को ख़त्म करने के लिए नहीं, या फिर लोगों को दबाने के लिए नहीं. ए मैप कैन शो अस वेयर अ प्लेस इज बट ओनली एक्सप्लोरेशन कैन टीच अस व्हाट पीपल ट्रूली मीन्स. अकॉर्डिंग टू कॉनरैड, एवरी जर्नी चेंजेस द ट्रैवलर बिफोर इट चेंजेस द मैप. कॉनरेड कहते हैं कि कोई भी यात्रा जो है, कोई भी जो जर्नी है वो ट्रैवलर को चेंज करती है, यानी कि उसके अंदर कितने सारे चेंजेस आते हैं, कल्चरल चेंजेस, एज अ मतलब पर्सनल चेंजेस, ह्यूमन के तौर पर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं. इसलिए उन्होंने कहा है कि एवरी जर्नी चेंजेस द ट्रैवलर बिफोर इट चेंजेस द मैप. मैप के चेंज होने से पहले इंसान चेंज हो जाता है. सो गाइज, हाउ वाज दिस? कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कोई भी कमी इसमें रहती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि मैं आगे उसके लिए सुधार कर सकूं, क्योंकि मैं पहली बार यूट्यूब पर पढ़ा रही हूं. और आगे किन किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, ये आप कमेंट्स में बता सकते हैं. बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट एग्जाम, हैव अ ग्रेट डे.